નમસ્કાર, હું છું આપણી સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત. આજે આપણે વાત કરીશું આઈપીએલ વિશે. આજે આઈપીએલનું ફાઇનલ છે. આપણે જોઈ શકીએ કે જે હિસાબે આજે એક ઘમાસાન યુદ્ધ થવાનું છે બે ટીમો વચ્ચે, અને ખાસ કરીને 18 વર્ષ પછી આજે આ એક નવો ચહેરો મળશે, નવી ટીમ મળશે આખા દેશને. ત્યારે આપણે વાત કરીએ ક્રિકેટ પ્રેમીઓ માટે આજે બહુ ખાસ દિવસ છે. આઈપીએલ 2025નો સૌથી મોટો મુકાબલો આજે છે. જણાવી દઈએ કે ફાઇનલ મેચ આરસીબી અને પંજાબ કિંગ વચ્ચે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ એટલે અમદાવાદમાં થવા જઈ રહ્યો છે. અને જ્યાં એક તરફ ટીમો છે તે પોતાના સપનાને સાકાર કરવા ઉત્સુક છે, તો બીજી તરફ દર્શકો છે તે પોતાના ફેવરેટ પ્લેયર માટે ધબકતું દિલ લઈને મેદાન તરફ દોડી રહ્યા છે. આમ દેખાઈ રહ્યું છે કે માત્ર ખેલાડીઓ નહીં, પરંતુ આખું અમદાવાદ આઈપીએલના રંગમાં રંગાઈ ગયું છે અને સ્ટેડિયમ બહાર લાઈનો લાગી રહી છે. અને ત્યારે યુવાઓ તો ટી શર્ટ પર નામ લખાવીને પણ પહોંચી ગયા છે, અને કેટલાક તો સ્ટેડિયમની બહાર ડીજેના ધૂન પર ગરબા પણ કરી રહ્યા છે. ત્યારે અંદર સ્ટેડિયમમાં બંને ટીમોની તૈયારીઓ પણ ઓછી નથી. જણાવી દઈએ કે હવે જોવાનું એ છે કે કોણ બનશે આઈપીએલ 2025નું ચેમ્પિયન, અને શું કોહલીના રન વરસશે કે શાર્દુલ ઠાકુરના મેચ વિનિંગ સ્પેલ, કે પછી પંજાબ કરશે ઇતિહાસ. મેદાનમાં બેટ અને બોલના ઘમાસાનથી પહેલા સ્ટેડિયમના બહાર જોવા મળ્યું ક્રિકેટ પ્રેમીઓનું જુનૂન, જોશ અને જશ્ન તરફથી જે આ એક ખાસ અસર પડી શકે છે. જે હિસાબે વાત કરીએ, આજે આઈપીએલનો ફાઇનલ છે અને એના વચ્ચે જ હવામાન વિભાગ તરફથી એક જે કહેવામાં આવે તો હવામાન વિભાગ તરફથી જે આગાહી કરવામાં આવી છે કે જો વરસાદ પણ પડવાની, એને પણ વધારે નહીં પણ થોડું ઘણો વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. ત્યારે સવાલ એ ઉઠે છે કે જો ફાઇનલ મેચમાં વરસાદ પડે તો એનું શું થશે. જણાવી દઈએ કે એના માટે એક રિઝર્વ ડે રાખવામાં આવ્યો છે. જો રિઝર્વ ડે પર પણ કોઈ પરિણામ ન આવે તો ટ્રોફી બંને ટીમ વચ્ચે વેચાઈ જશે. જણાવી દઈએ 120 આજે ફાઇનલ મેચ થવાની છે અને આ 18 વર્ષ પછી એક નવો ચેમ્પિયન મળશે. આખા દેશમાં આ વર્ષે આઈપીએલ 2025નો આ ખાસિયત છે. અને સ્ટાર્ટિંગથી જે હિસાબે જોયું આપણે, વચ્ચે જે હિસાબે સમાચારો નીકળીને આવ્યા હતા આઈપીએલ પર, જે હિસાબે અઠવાડિયા માટે બ્રેક લાગ્યું હતું, અને એના પછી આ વર્ષે પાછું મેચ ચાલુ થયું છે. અને જે જે ખાસ ટીમો છે જે દર વર્ષે આપણા ઇતિહાસમાં જોઈ લઈએ તો ચેન્નઈ છે, મુંબઈ છે, એ બધું નહીં, પરંતુ આ વખતે ફાઇનલમાં બે નવી ટીમ, એટલે કે 18 વર્ષથી જે લોકો મહેનત કરી રહ્યા છે પણ આજ સુધી ફાઇનલમાં નથી આવ્યા, તે એવા બે ટીમ આજે સામસામે ટકરાશે. અને સૌથી મહત્વની વાત એ છે, આપણે રેકોર્ડની વાત કરીએ તો આજ સુધી બંને વચ્ચે કંઈક 36 મેચ થયા છે, જેમાં 18 બંને તરફ વિજેતા થયા છે. ત્યારે આજે એટલે કે આઈપીએલનો ફાઇનલ દિવસે કોણ વિજેતા થશે તે એક મોટો સમાચાર છે. આ એક મોટા જેના પર આખા તમામ દેશના જે ક્રિકેટ ચાહકો છે તે તમામેનો નજર રહેશે. એ બધા તમામ ચાહકો જે છે તે લોકો સ્ટેડિયમની બહાર પહોંચી ગયા છે. સ્ટેડિયમમાં એક આજે ઘમાસાન યુદ્ધ થવા જઈ રહ્યું છે. આપણે વાત કરીએ આઈપીએલનું. આઈપીએલ આ વખતે બહુ ખાસ છે. આ વખતે આરસીબી જે 18 વર્ષથી આપણે એક રામાયણ કાળની એક વાત કરીએ તો ભગવાન શ્રી રામને 14 વર્ષનો વનવાસ હતો, અને આ આરસીબી ટીમ જે છે તે સતત 18 વર્ષથી એ લોકો મહેનત કરી રહ્યા છે. આજ સુધી સફળતા મળી નથી. જોકે ઘણીવાર એવું થયું છે કે એ લોકો રનરઅપ પણ રહી ચૂક્યા છે અને તો પણ ફાઇનલ જીતી શક્યા નથી. અને ત્યારે આજે એ લોકો ફાઇનલ જ્યારે રમવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે દર્શકોને, જે ચાહકો છે, જે ફેન્સ છે ક્રિકેટના, તે લોકોનું સૌથી મોટો એ જોવાનું છે કે એ આજે કયો ટીમ વિજેતા બનશે. અને એ જોવા માટે આજે મેદાન પર ત્યાં બધા પહોંચી ગયા છે. આપણે વાત કરીએ આઈપીએલમાં સામસામેની. હું તમને જણાવી દઉં, જે હિસાબે ગ્રાફિક્સમાં પણ આપ જોઈ શકો છો કે કુલ મેચ 36 અત્યાર સુધીમાં રમાઈ છે, જેમાં 18 વિજેતા બન્યું છે.
અમુક જે સવાલો છે કે પંજાબના ટોપ ઓર્ડર જે ક્રિકેટર છે, બલ્લેબાજો છે, એ લોકો આરસીબી ને જે ગેંદબાજો છે તે લોકોની હાર્ડ લેન્થ ડિલિવરીનો શું સામનો કરી શકશે? કે પછી આપણે વાત કરીએ આરસીબીની, તો જો આરસીબીના જે બેટ્સમેન્સ છે તે લોકો કયા હિસાબે રમે છે, કયા હિસાબે લોકો પંજાબને ટક્કર આપશે, કે કોણ રમશે, તે મોટો સવાલ છે. પંજાબ વિશે આપણે વાત કરીએ તો પંજાબ તરફથી એવો કયો બોલર હશે જે આરસીબીના જે મેઇન બેટ્સમેન છે તે લોકોની વિકેટ લેવામાં એ લોકોને સફળતા મળી શકે? આ એક ગંભીર છે. આપણે વાત કરીએ આરસીબીની વર્તમાન સિઝનના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓ વિશે, તો હાલમાં આપણે વાત કરીએ તો ફિલ સોલ્ટ, જેમનો 12 મેચ રમ્યા છે, 387 રન છે. અને આપણે વાત કરીએ હવે જોસ હેઝલવુડ, તો 11 મેચ છે જેમાં 21 વિકેટ એમણે લીધું છે. તો હાલ હવે આના પર વધુ વિગતવાર વાત કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે મનુકુમાર, જે ક્રિકેટ એક્સપર્ટ છે, અમારા જતીન રાવલ, સંવાદદાતા અમારા અમદાવાદથી. હાલમાં હું જતીનભાઈ સૌથી પહેલા આપણી પાસે આવીશ. હમણાં હાલમાં આપણે વાત કરીએ અમદાવાદની, તો અમદાવાદમાં જે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ છે તેની બહાર અત્યારે કયા પ્રકારે છે દ્રશ્યો છે, જે ભીડ છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આજે ક્રિકેટ પ્રેમીઓ છે તે લોકોમાં કયા પ્રકારનું અત્યારે માહોલ જોવા મળી રહ્યું છે? સંપૂર્ણપણે તમામ જે આજે જે ફાઇનલ છે તેની આપણાથી જે ક્રિકેટ રસિકો જે છે તે લોકો રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ત્યારે આજે ચોક્કસથી જણાવવાનું છે કે તમામ જેટલા પણ જે ક્રિકેટ રસિકો છે તે અહીંયા આઈપીએલ ની ફાઇનલમાં ભાગ લેવા માટે ફાઇનલની મુવમેન્ટ જે છે આ વખતે એવું છે કે આ વખતે નવો ચેમ્પિયન જે છે તે આઈપીએલ ની લીગ ને આ પ્રીમિયર લીગ છે, નવો ચેમ્પિયન જે છે તે આ વખતે મળવાનો છે. એટલે એને લઈને ખાસ કરીને ક્રિકેટ રસિકોમાં જે છે તે ખૂબ જ ઉત્સાહ અત્યારે હાલ જે છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. અત્યારે લોકો ખૂબ જ ભારે માત્રામાં જોઈ શકો છો. દ્રશ્યો જોતા જ આપને ખબર પડી જશે કે કેટલો ઉત્સાહ અને કેટલી મોટી માત્રામાં ક્રિકેટ રસિકો જે છે તે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. પરંતુ જેટલા પણ લોકો સાથે વાત કરી છે તો જાણવા મળ્યું કે સૌથી વધારે જે ફોલોઅર્સ છે તે આરસીબીના સૌથી વધારે ફોલોઅર્સ ત્યાં સુધીમાં જે છે તે જોવા મળે છે. ક્રિકેટ રસિકો છે, આપણે તેમની સાથે વાતચીત કરીએ, જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. શું નામ છે? ક્યાંથી આવે છે? નવસારીથી. શું લાગે છે કોના સમર્થનમાં આવે? આરસીબી. શું નામ છે? ક્યાંથી આવે છે? નવસારીથી. શું લાગે છે આ વખતે પ્રથમ વખત કે નવો ચેમ્પિયન મળવાનો છે? 2022માં નવો ચેમ્પિયન તરીકે ગુજરાત ટીમ આવી હતી. આ વખતે શું લાગે છે નવા ચેમ્પિયન તરીકે કઈ ટીમ આવી છે? આરસીબી. વિરાટ કોહલીના લીધે વિરાટ કોહલીના લીધે લઈ અને આરસીબી જે છે તે આરસીબીની ટીમ આવે એવું ક્યાંક ને ક્યાંક રસિકો જેટલા પણ છે તે લોકો માની રહ્યા છે. પરંતુ ચોક્કસથી અત્યારની હાલની જે આ ભીડ છે તે ચોક્કસથી કહી શકાય કે લોકોમાં ખૂબ ભારે માત્રામાં ઉત્સાહ જે છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. મોટી માત્રામાં લોકો જે છે તે અહીંયા ક્રિકેટ જોવા માટે આવી રહ્યા છે. અને આપણે કેટલાક ક્રિકેટ રસિકો બીજા પણ છે તેની સાથે પણ વાત કરીએ. શું નામ છે? એમ ક્યાંથી આવે છે? जोधपुर. राजस्थान से आए हो? क्या देखने की? कोहली के लिए आना पड़ेगा भाई, ये तो है. अच्छा, राजस्थान से कितने लोग आए हो? 5 लोग आए. 5 लोग आए. सूरत से आए हो? मुझे बात करते हैं. अच्छा, आप क्या लगता है आपकी जो फाइनल है किस तरह का उसमें रोमांच देखने को मिला? क्या लगता है आज से ये दोनों साथ में आए? एक पंजाब है, एक आरसीबी है, एक सूरत भी है. सूरत से सूरत वाले लोग क्या करते हैं? જી જતીન, હું આવીશ હવે તમારી પાસે. આપણે વાત કરીએ હવે मनुजी સાથે, જે हमारी साथ जोड़ाए છે, क्रिकेट निष्णात છે. मनुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज इस पूरे मैच के चर्चा में. मनुजी, मैं आपसे ये
जी मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस बार की जो आईपीएल है ये बहुत एक खास रहने वाली है, क्योंकि आईपीएल फाइनल में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 18 सालों के बाद में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब एक नया एक चेहरा मिलेगा, ये एक नया जो है नई टीम एक चैंपियन बनेगी, क्योंकि मेहनत तो दोनों ही टीम काफी सालों से करते आ रही है और आईपीएल की जितनी भी टीमें हैं लगातार सब मेहनत कर रहे हैं। इसमें देखा जा रहा है इस बार जिस प्रकार से ये आरसीबी और पंजाब के बीच में जो टक्कर है, आपको क्या लगता है, ये आप मैच को किस प्रकार से देख रहे हैं और आपका क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दोनों टीमें जो इस फाइनल में पहुंची हैं वो दोनों की यदि आप देखें तो विन और लॉसेस बराबर है। और आरसीबी जो इतने सालों से, ये मेरा अपना सोचना है, इतने सालों से जिस चीज को लैक कर रही थी वो थी बॉलिंग। इस बार उन्होंने अपनी बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी की है। हैजलवुड, भुवनेश्वर, यश दयाल, सुयश, कुणाल पांड्या, ये लोगों ने बॉलिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दी है और छोटा मोटा जो कंट्रीब्यूशन है वो रोमेरियो शेफर्ड भी दे देते हैं। उसके चलते आरसीबी ने इस बार इस तरीके का एक कमाल दिखाया है कि ये लोग फाइनल में पहुंच गए। दूसरी तरफ यदि हम पंजाब का करें तो पंजाब के पास ये जो दो नए चेहरे एकदम सामने आए हैं, जैसे प्रियांश आर्य, टेरिफिक प्लेयर, और शशांक सिंह, निहाल वडेरा, और फिर जो जिस तरीके से उनका लीडर है जो कि मौके पर फ्रंट लीड करता है। तो ये जो दोनों टीमों का यहाँ पहुंचना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक फ्लूक हो। दोनों टीमों ने बहुत पहले से इस चीज पे प्रिपरेशन की और उसी तरीके से इन्होंने प्लेयर्स लिए। सबसे अच्छी चीज यह है कि उसको देखते हुए ही एग्जीक्यूशन भी किया इन्होंने, उन प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया। जैसे आरसीबी ने अपने पिछले कुछ मैचों में मयंक अग्रवाल को इंपैक्ट प्लेयर लेकर आ गए और जिसका कि उन्होंने उसका एडवांटेज भी देखा। साइमल्टेनियसली यदि आप पंजाब को देखते हैं तो पंजाब ने भी ऐसी प्रभ सरमन को एकदम से इंपैक्ट में डाल दिया और उसका यूज किया उन्होंने बहुत तरीके से। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये बराबर की ही टीमों के बीच में मैच है। थोड़ा सा झुकाव आरसीबी की तरफ है बिकॉज दे हैव वेरी ब्रिलियंट बॉलिंग यूनिट, थोड़ा सा झुकाव उनकी तरफ है। बाकी बैटिंग यूनिट की बात करें तो ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर सा ही है। तो ये एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। शो भी नॉब्स को कंट्रोल कर गया, वो इसको थ्रू कर जाएगा। जी एक जिस प्रकार से देखा जा रहा है, आप जिस प्रकार से बता रहे थे कि आरसीबी में इस बार काफ़ी उन लोगों ने मेहनत भी किया है, काफ़ी बॉलिंग में भी उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है। अभी हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर भीष्म जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं आप। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आज देखा जा रहा है कि आरसीबी और पंजाब के बीच में ये जो फाइनल मैच है, ये एक नई टीम आज मिलने वाली है जब आईपीएल में, और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। जिस हिसाब से अभी मनु जी ने बताया कि आरसीबी भी काफी मेहनत करी है, पंजाब भी काफी मेहनत करी है, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। नमस्कार मनु भैया। मैं बिल्कुल सहमत हूँ मनु भैया से, और मेरे मन में तो है कि विराट कोहली 18वां सीजन खेल रहे हैं। बहुत मेहनती खिलाड़ी हैं, बहुत जबरदस्त मेहनत की है उन्होंने, इंस्पिरेशनल हैं। अभी तक जब से शुरू किया क्रिकेट और आज तक उसी अंदाज में ग्राउंड में रहते हैं वो। तो मेरे मन में तो है कि विराट कोहली ये वाली ट्रॉफी भी लेकर दें, मतलब आरसीबी जीते। बाकी बैलेंस है टीम, दोनों बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है। और मैं बहुत पहले से सोचा करता था कि दोनों में से किसी को ट्रॉफी मिलनी जरूरी है। तो मेरी तो दोनों ही टीमें आज फाइनल मुकाबले में हैं। जिस हिसाब से देखा जा रहा है, और आप भी कह रहे हैं कि आरसीबी और विराट कोहली, देश के कई कितने ऐसे हैं जो आरसीबी फैंस की जब बात की जाती है तो खास करके आरसीबी फैंस ऐसे हैं जो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं। इस बार जब फाइनल तक पहुंच गई है टीम, और फाइनल तक पहुंचने के बाद इस बार देखा जा रहा है कि आरसीबी के जो उनके दर्शक हैं या जो उनके चाहते हैं, वो लोग काफी अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर पहुंच चुके हैं। आईपीएल अब देखना यह रहेगा कि विराट कोहली का क्या प्रदर्शन रहेगा, क्योंकि सबकी उम्मीदें हैं विराट कोहली के साथ में। कहीं ना कहीं इस बार बॉलिंग में भी देखा जाए तो कुणाल पांड्या है, जिस हिसाब से अभी मनोज जी बता रहे थे, और भुवनेश्वर कुमार, काफी अभी उन लोगों ने भी मेहनत किया हुआ है। तो आप बॉलिंग या बैटिंग अब किस टाइप से आप प्रेफर करना चाहेंगे इस बार, जो अगर आरसीबी की बात करें? आरसीबी की जो टीम है ना,
वो आरसीबी की टीम परफेक्ट बैलेंस है, उनकी बैटिंग यूनिट और बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी है, बहुत बैलेंस है पूरी। अगर आप देखें तो आरसीबी की जो टीम है ना, उसके लगभग 9 प्लेयर्स ने मैन ऑफ द मैच जीते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। और अगर वहीं पंजाब की बात करें तो वहां 2 या 3 ही प्लेयर हैं जो वो करके आए हैं, मतलब यहाँ तक लेकर आए हैं। मतलब वैरायटी जो है, जो ज्यादा उसके अंदर वो है, वो आरसीबी पे है, दोनों चीजों को मिलाकर। जी जी अभी अगर हम बात करें दोनों टीमों की, तो अगर पूरा हम रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो उसमें अभी तक 36 मैच दोनों के हुए हैं आमने सामने की जब हम बात करते हैं, जिसमें से 18 मैच दोनों टीमें जीती हुई हैं। तो अगर ये जो चीज है, इसको आप किस हिसाब से देखते हैं कि पंजाब और आरसीबी के बीच का जो आज ये फाइनल मैच है, तो इसमें क्या कुछ रहेगा, क्या खेल उनकी अपनी अपनी टीम की क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार से वो लोग खेलना चाहेंगे? आज का मैच दोनों ही टीमें अपना जो भी बेस्ट है वो देने की कोशिश करेंगे। जिस चीज के लिए तैयार करते हैं लोग अपनी टीम्स को, ओनर्स, टीम मैनेजमेंट, आप देखते हैं आईपीएल में कितना बड़ा टीम मैनेजमेंट होता है किसी भी टीम के लिए। आईपीएल इज नॉट ए स्मॉल लीग, पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी लीग है आईपीएल। तो बहुत कुछ दांव पे है और सब चाहेंगे, अब दोनों टीमें भरसक चाहेंगे कि वो ट्रॉफी लेकर जाए। एज आरसीबी को है। जी मनु जी, मैं आपसे अभी पूछना चाहूंगा, जिस हिसाब से अभी बताए प्रोफेसर भीष्म जी ने कि मेहनत भी कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जो उनकी मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट, वो भी काफ़ी असर कर सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि दोनों टीमें जब 18 मैच आमने सामने की जीते हुए हैं दोनों टीम, तो इस बार क्या प्रभाव रहेगा और दोनों किस हिसाब से अपने अपने टीम को मैनेज करेंगे? देखिए, पास्ट रिकॉर्ड पर तो बहुत ज्यादा हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि पास्ट में ये कॉम्बिनेशन तो खेला नहीं जो इस साल खेला है दोनों ही टीमों का जी। बट थोड़ा सा पीछे के मैचेस यदि आप देखें तो दोनों ही टीमें वो मैचेस जीत के आई हैं तो जहां पर उनके खुद के सपोर्टर गेम को गिव अप कर चुके थे। जैसे अभी लास्ट मैच मुंबई इंडियंस में सुरेश अय्यर आए और उन्होंने ब्रिलियंट नॉक खेली जो कि बियॉन्ड कंपैरिजन थी और उन्होंने वो जिता के इधर ले गए। उससे पहले जितेश शर्मा ने जो ब्रिलियंट इनिंग खेली है, वो भी मैच ऐसा नहीं था कि जिसमें आरसीबी को इतना कॉन्फिडेंस हो कि नहीं वो जीत ही जाएंगे, लेकिन जितेश आए और जितेश ने वो मैच एकदम अपने झोली में डाल दिया। तो लास्ट के जो 2 मैचेस 2-3-4 मैचेस जो खेली हैं दोनों टीमें, उससे लगता है कि ये लोग, मतलब आप ऐसे एकदम ब्लाइंड किसी की तरफ जा नहीं सकते कि ये टीम बहुत बेहतर खेलेगी आज, क्योंकि दोनों ही टीमों के टॉप ऑर्डर उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन सडनली एक नया प्लेयर आया, मयंक अग्रवाल, तेज आया, उन्होंने ये मैच जिता दिया। साइमल्टेनियसली इधर सुरेश अय्यर ने जो बैटिंग की वो तो खैर बियॉन्ड कंपैरिजन जो बैटिंग करके गए। नेल वडेरा ने जो बैटिंग करी है, आप देखो कि जी टीमें दोनों पहुंची है फाइनल में जी। दोनों ही टीमें इस तरीके का मैच जीत रही है जो कि अनबिलीवेबल मैच था। पर इसलिए जो मैं भीषम से बहुत सहमत हूं कि ये वाला जो मैच है ये सिर्फ वो ही जीतेगा जो इस प्रेशर को में अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर पाएगा जी। और अब कोई ऐसा तो है नहीं, यदि आप कंपैरिजन उठा के देखें दोनों टीमों को तो ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर आरसीबी के पास है, इवन उनकी बॉलिंग यूनिट भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो कंपैरेटिवली पंजाब के। तो हल्का सा है, थोड़ा सा उनकी तरफ झुका हुआ है, बट आप ऐसे नहीं कह सकते कि 70-30 60-40 इस तरीके की आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आज के मैच के लिए। इट्स ब्रिलियंट मैच, इट विल बी ब्रिलियंट मैच, मजा आएगा। मतलब कभी भी आप ऐसा रिलैक्स नहीं हो सकते कि ये तो आरसीबी थ्रू कर गई या पंजाब एकदम थ्रू कर गई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा मैच होगा और वाकई दर्शकों का पैसा वसूल मैच होगा ये। एक बार जरा हम नजर करते हैं गुजरात की तरफ और हम बात करते हैं जतिन भाई से। जतिन भाई हमारा हाल में આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં હમણાં હાલમાં હવામાન વિભાગની જે આગાહી કરવામાં આવી હતી, અત્યારે શું માહોલ છે અને વરસાદ જેવી જે આગાહી હતી તેમાં અત્યારે કયા પ્રકારનું માહોલ જોવામાં આવી રહ્યું છે?
ચોક્કસથી કેટલું આપણે જણાય કે એ રીતે ટેકનિકલ કઈ કરવામાં આવી હતી તો ચોક્કસથી વરસાદ હમણાં થોડી વાર પહેલા જ વરસાદ કે લગભગ 5:30 આસપાસ વરસાદ અહીંયા આવ્યો પણ હતો અને વરસાદ થોડો સમય આવશે ને પછી ગળી પણ થઈ ગયો અત્યારે જે હાલ જે સર્વિસ કે અત્યારે આટલે ત્યાં ઉતર થવા સાદર આપણે ક્યાંક દેખે તો જોવા મળી જાય છે પરંતુ ચોક્કસથી જે રીતે વરસાદ આવીને જતો રહ્યો છે ત્યારે હવે લગભગ અત્યાર સુધીમાં જે સ્ટેડિયમ છે તે હવે રમવાલાયક ફરીથી થઈ ગયું છે અને કહી શકાય કે થોડી જ વખતમાં જ્યારે સ્ટેડિયમ છે ત્યારે મેચ જે છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવશે પરંતુ ચોક્કસથી એક વાત जी કંઈક તકनीकी कारणों थी आपनो आवाज़ नहीं आ रही मनु जी मैं वापस आपके पास में आता हूं। अभी आप जिस प्रकार से बता रहे थे कि आरसीबी के पास में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। હવામાનની જે સ્થિતિ છે તે જોતા એવું લાગતું નથી કે વરસાદ ક્યાંક ને ક્યાંક ઋતુના અંદર ઊભું કરે આપણે ચોક્કસથી રમાશે ફાઇનલ અને જે રીતે ક્રિકેટ રસિકોમાં હાલ જે આનંદ છે જોવા મળી રહ્યો છે તે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે जी जतिन भाई રસિકો સાથે વાત કરી છે તે તમામ લોકોની એમ જ કહેવું છે કે આરસીબી જીતે બીજા जी जतिन भाई હું પાછો આવીશ આપની પાસે હમણાં હાલમાં આપણે વાત કરીએ प्रोफेसर भीष्म जी मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा जिस प्रकार से अभी हमारे मनु जी बता रहे थे कि दोनों ही टीम काफी मेहनत की है और आरसीबी के पास में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं इसका कुछ फायदा मिलेगा, विशेष कुछ फायदा मिलेगा आरसीबी को? जी प्रोफेसर भीष्म जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिस प्रकार से अभी मनु जी बता रहे थे कि आरसीबी के पास में काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, तो आपको क्या लगता है कि इसका कुछ विशेष फायदा मिल सकता है आरसीबी को? बिल्कुल मिल सकता है फायदा और मिलता है फायदा, लेकिन दोनों ही चीजें हैं। मैं मतलब भैया से इत्तेफाक रखता हूँ, अनुभव हमेशा काम आता है, वो भी बड़े मैच जब फाइनल हो आईपीएल जैसा। लेकिन एक चीज मेरे को पंजाब की बहुत अच्छी लगी, पंजाब में अनकैप्ड प्लेयर बहुत हैं जो अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेले हैं। तो जो वो जो बच्चे हैं जो नॉक कर रहे होते हैं ना भारतीय टीम में आने के लिए या विश्व में दिखाने के लिए कि हम भी कुछ हैं, तो उनके पास डर कुछ नहीं होता। वो आजकल ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि वो बड़ा कर जा रहे हैं। मतलब आप देखिए पूरे आईपीएल में देखें तो अगर कंपैरिजन करें तो कैप प्लेयर हैं यानी जो भारत के लिए खेल चुके हैं या किसी और देश के लिए खेल चुके हैं और अनकैप प्लेयर्स जो अभी नॉक कर रहे हैं, तो देखिएगा उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है। अनुभव तो काम आता ही आता है, पक्की बात है, पर जो आज का यूथ है ना, आज का जो युवा है वो बड़े स्टेज के लिए तैयार हो रखा है। ऐसी ट्रेनिंग्स हैं कि वो चाहता है कि मैं अभी देखिए मुंबई से जब मैच था तो भाई मुंबई से तो ज्यादा बॉलिंग बढ़िया अटैक किसी के पास है ही नहीं, आप अगर मुंबई और पंजाब का कंपैरिजन करें। लेकिन कप्तान ने नेहल वडेरा देखिए बिल्कुल यंग बॉय है, उन्होंने क्या बैटिंग की है। शुरुआत जरूर पहले वो 20 रन जब जैसे ही बुमराह साहब को लगे तो वो डाउन हो गया पूरा मोमेंटो, पर अनकैप प्लेयर मतलब यानी कि जो उभर कर आ रहे हैं वो भी तैयार हैं इस स्टेज के लिए। जी तिवारी जी जिस हिसाब से अभी देख रहे हैं कि ये एक काफ़ी है। और एक पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि जब विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर उतर रहे हैं और फाइनल मैच है तो विराट कोहली को आउट करने की क्या रणनीति रहेगी पंजाब की? अब पंजाब देखिए विराट की कुछ चीजें हैं जो उनकी हल्की सी वीकनेस है, लेकिन पंजाब उस पर जरूर काम करना चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर डालकर उनको जो स्लिप में और कीपर पे आउट होते हैं वो करने की कोशिश करेंगे, अर्शदीप कोशिश करेंगे। लेकिन विराट कोहली साहब इतने बड़े प्लेयर हैं कि वो इसी दिन के लिए जी रहे हैं। वो अपने क्रिकेट के करियर के उस पड़ाव पर हैं कि आज कितनी भी रणनीतियां लगा लें पंजाब, आज तो 18 ट्रॉफी लेके ही जाएगा, 18वीं ट्रॉफी। जी
अब जो उनके फैंस हैं वो फैंस भी काफ़ी इस बार खुश दिख रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि जब 18 नंबर है और 18 सालों के बाद में फाइनल में पहुंची है, तो लोगों का ये भी कहना है कि इस बार आरसीबी जीते। और आरसीबी अगर जीतती है, अगर हम आज की बात करें, आज फाइनल में आरसीबी जीतती है, तो किस प्रकार का ये जो पूरा माहौल होगा देश का, ये देखने जैसा होगा। ये आप क्या कहना चाहेंगे? जश्न जो है ना आरसीबी के जीतने पर ज्यादा होगा, मतलब उनके सपोर्टर्स, फैन फॉलोइंग विराट की वजह से वो ज्यादा है अगर कंपैरिजन करें। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, एक्चुअली आप गुजराती में बात कर रहे थे, तो हम वरीड हैं इधर कि उधर मौसम की क्या स्थिति है, मैच में ग्राउंड पे क्या कंडीशन है? रावल साहब जो बता रहे थे आप। फिलहाल वहां पे जिस हिसाब से हवामान विभाग ने बताया था कि बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन अभी उस हिसाब से वहां पे भी मौसम फिलहाल ठीक है। अभी तक बारिश की अभी कोई वहां पे अनुमान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी फिलहाल तैयारी रखा गया है, क्योंकि इतना बड़ा जब वो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो वहां पे उन लोगों ने बारिश को लेके भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए भी उन लोगों ने तमाम प्रकार की तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन अभी फिलहाल वातावरण ठीक है। मेरा जो कहना था ना, मेरा प्रश्न इसलिए है जी कि ये वाला मैच का ना इंतजार सालों से हो रहा था। जी बिल्कुल। ये दोनों टीम आईपीएल का एक नया चैंपियन, दोनों तरसती हुई टीमें जो दोनों ही तो वो मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं बताना चाहता हूं। जी एक बार मनु जी की तरफ रुख करेंगे फिर से। मनु जी, जिस प्रकार से भी अपने प्रोफेसर सर बता रहे थे, तो आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार से वो लोग आरसीबी को, जो पंजाब है, पंजाब किस प्रकार से आरसीबी को रोकने की कोशिश करेगी? क्योंकि आरसीबी की भी अगर हम बात करें तो आरसीबी में काफी ऐसे प्लेयर्स हैं, आपने ही अभी कहा कि काफी एक्सपीरियंस जो प्लेयर्स हैं, तो उनको रोकने की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, यदि आप T20 फॉर्मेट को लें तो ऐसे बहुत कम मैचेस आपको देखने को मिले होंगे जिसमें बॉल स्विंग हुआ होगा, सपोर्ट हुआ होगा, पिच का या वेदर का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला होगा बॉलर्स को। जैसे अभी लास्ट मैच ही था जिसमें जेमिसन ने एक ब्रिलियंट स्पेल डाला था और उसमें उन्होंने विराट को आउट किया, और उसके बाद जो अगली चारों बॉल डाली मैंक को, वो भी ऑलमोस्ट मैंक मतलब उसमें थे ही नहीं कि कैसे खेला जाए उन बॉलों को। और साइमल्टेनियसली जैसे ही वो स्विंग खत्म हुआ, उसके बाद वही जेमिसन अगले ओवर में 4 चौके खाए। तो अभी कोई ये कहना कि आप विराट के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो विराट के लिए स्ट्रेटेजी बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है। अब वेदर ही कुछ या पिच ही कुछ ऐसा सपोर्ट कर जाए जहां लेटरल स्विंग शुरू हो जाए, या कुछ वेदर से सपोर्ट मिल जाए बॉलर को। जबकि आप उठा के देखें तो ऐसा कोई अर्शदीप के अलावा कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो कि यदि सपोर्ट नहीं है वेदर की या पिच की तो कुछ बॉल से अपने स्किल से कुछ कर सके। जेमिसन है, उनको एक सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे तो वेदर का हो चाहे पिच का हो। अदरवाइज यदि वो सपोर्ट नहीं है तो वो बहुत इजी है, बहुत इजी उनको डोमिनेट करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अर्शदीप है जो कि थोड़ा सा, एक तो लेफ्टी है, उनको एंगल का एडवांटेज मिल जाता है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई स्ट्रेटेजी, यदि पिच और वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा, बॉल इज नॉट स्विंगिंग, देन दे विल डोमिनेट ऑन विराट कोहली। विराट कोहली फिर उनके बस से बाहर है। और भी जो भी प्लेयर्स हैं जैसे रजत पाटीदार या फिल सॉल्ट, मयंक अग्रवाल मैं बोलूं, जितेश बोलूं, ये सब लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, ये लोग डोमिनेट ही कर रहे हैं। जैसे कि भीषम ने कहा कि जो अनसीडेड प्लेयर होते हैं, जैसे हम लॉन टेनिस में देखते हैं, अनसीडेड प्लेयर को कोई प्रेशर नहीं होता, अनसीडेड प्लेयर तो बिंदास खेलता है। तो ऐसे ही जब पंजाब की टीम होती है ना, उसमें कोई प्रेशर नहीं है टॉप ऑर्डर पे। प्रियांश आर्य, प्रभ सरमन सिंह, ये लोग बिंदास खेलते हैं, इनको कोई टेंशन ही नहीं है कि 200 रन चेज कर रहे हैं कि 204 चेज कर रहे हैं या 150 चेज कर रहे हैं, वो बिंदास है, उनको टेंशन ही नहीं। तो आप यदि प्रेशर ओरिएंटेड सिनेरियो में आते हैं तो भीषम की बात मुझको समझ में आती है कि विराट के लिए आपको सोचना पड़ेगा, और प्रियांश आर्य के या पंजाब के टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो ही कुछ नहीं सोच रहे, वो ही बिल्कुल फ्री माइंड से खेलने पहुंच गए। तो उनको पता ही नहीं है कि भाई क्या प्रेशर है, क्या कुछ है, बस वो एक महज
हर मैच को वो ऐसे ही खेल रहे हैं कि बस ये एक सिंपल मैच है। वो ये नहीं देख रहे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि भाई हमको ट्रॉफी के लिए जाना है। और अभी मैं कहीं आर्टिकल एक पढ़ रहा था तो उसमें सुरेश अय्यर के लिए एक पूर्व बैटिंग कोच है हमारे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि सुरेश अय्यर जब ड्रेसिंग रूम में एंटर होते हैं या रहते हैं तो लगता ही नहीं कि वो, मतलब टीम नीचे लगी हुई है तो भी एटीट्यूड सेम है, टीम ऊपर है तो भी एटीट्यूड सेम है, वो आउट होकर आ गए तो भी उनका एटीट्यूड सेम है, और टीम का माहौल भी वैसा ही है। टीम का माहौल भी ऐसा नहीं है कि भाई चलो 4 आउट हो गए तो टीम का माहौल डाउन कर दिया, तो भी उन्होंने ऐसे ही माहौल बनाया हुआ है कि हाँ हम तो चैंपियन है, या लोग हम तो बेटर है, आज सामने वाली टीम का दिन अच्छा था। तो इस तरीके का माहौल पंजाब की टीम में है, और आरसीबी की टीम में है ही कि भाई विराट है तो इतना बड़ा प्लेयर उनके ड्रेसिंग रूम में, तो वो तो वैसे ही कॉन्फिडेंट है। तो अभी अभी इसीलिए जो मुझको भी और भीषम को भी हम लोग ये नहीं कह सकते ना कि स्ट्रेट अवे अरे ये टीम बहुत ब्रिलियंट है, ये तो जीतेगी जीतेगी, समझे? और ना कोई बॉलर ऐसा कह सकता कि हम तो डोमिनेट करेंगे विराट पे, हमने ये स्ट्रेटेजीज बनाई है, यहाँ हम करेंगे, है ना? ऐसा कभी भी भीषम के जो स्टेटमेंट है उसको मैं सहमत हूं कि विराट को डोमिनेट करना इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग कि भाई सोचा और डोमिनेट कर लिया। जी अभी देखना मुझे ये होगा इस मैच में कि स्पिनर क्या करेंगे, युजवेंद्र चहल और सुरेश शर्मा, ये दोनों क्या रोल प्ले करेंगे, ये मुझे देखना होगा इस मैच में। बिल्कुल। मेरा सारा फोकस, क्योंकि सारी दुनिया फास्ट बॉलिंग पे फोकस कर रही है, लेकिन ये जो 2 बॉलर हैं स्पिनर, सुरेश शर्मा आरसीबी के लिए और युजवेंद्र चहल पंजाब के लिए, ये क्या करेंगे इस मैच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी, अगर हम पिच की बात करें तो अहमदाबाद का जिस हिसाब से जो पिच है, ये पिच को लेके आप क्या कहना चाहेंगे कि पिच जो है वो किसके सपोर्ट तरफ जा सकता है, या फिर जो ग्राउंड है, ग्राउंड से किसको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी ग्राउंड है जिस हिसाब से बताया जा रहा है, तो ये ग्राउंड को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको तिवारी जी कि यहां पर स्पिनर क्या रोल, स्पिनर को कोई फोकस नहीं कर रहा है, स्पिनर पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी ग्राउंड में स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। कुणाल पांड्या, सुरेश शर्मा, 2 स्पिनर हैं, लेकिन वहीं यदि आप उठाकर पंजाब को देखते हैं तो वो उनका सारा फोकस युजवेंद्र चहल पर है, जो कि अभी इंजरी के बाद आए, और उनके पास जो सो कॉल्ड इम्पैक्ट भी है, इम्पैक्ट में एक लेग स्पिनर अवेलेबल है प्रवीण दुबे, जिसको एक भी मैच नहीं मिला है, तो इतना चांस नहीं लेगी पंजाब कि स्ट्रेट अवे उसको फाइनल खिलाए। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा चांस वो लेगी। बाकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि सुरेश अय्यर कुछ भी कर सकते हैं, वो उनका प्लेयर को बूस्ट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर 2 तरीके की पिच है, एक रेड सॉइल की है, एक ब्लैक सॉइल की। अब कौन सी यूज होनी है ये तो अभी पता नहीं है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कौन सी वाली सॉइल यूज करेंगे आज, क्योंकि ब्लैक सॉइल होगी तो हाई स्कोरिंग मैच हो जाएगा, तो दर्शकों को ज्यादा मजा आना चाहिए। बट स्पिनर तो बड़ा ग्राउंड है, एडवांटेजेस होंगे ही होंगे जी। और मुझे लगता है भीषम भी मेरी बात से सहमत होंगे कि हम लोग सब सारा फोकस जो है फास्ट बॉलर्स पर ही है, क्योंकि वो 6 ओवर का गेम है ना, 6 ओवर दोनों बराबर टीमें जो अच्छा खेल जाती है वो थ्रू हो जाती है। बट व्हाट अबाउट 14 ओवर्स? 14 ओवर्स में दोनों टीमों के पास स्पिनर्स, आरसीबी के पास बेटर ऑप्शन है, वहां तो एक ही स्पिनर है चहल। हम अभी जानते हैं भीष्म जी से। भीष्म जी, अभी जिस हिसाब से मनु जी जो बता रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हमारा भी ध्यान, मनु भैया, थैंक यू रिमाइंड कराने के लिए कि वाकई में ये दोनों ही तरफ देख लीजिए। सुयश भी अब अच्छा करने लगे, पिछले मैच में बहुत अच्छा किया है उन्होंने, और इधर चहल तो मतलब हम मीडियम पेसर देख रहे हैं, 6 ओवर देख रहे हैं। वाकई में गेम चेंजिंग तो स्पिनर हो सकते हैं, बिल्कुल बड़ा ग्राउंड है, दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों के लिए खतरा तो स्पिनर हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और मैच भी जो 6 ओवर, तो अब T20 में 6 ओवर तो ऐसे हो जाता है, कुछ नहीं पता उसमें क्या होना है। 6 ओवर के बाद मैं असल में
कैसे 200 लगना है या 170-75 पे ही रह जाओगे, वो छठे ओवर के बाद की क्रिकेट जब स्पिनर आता है तब शुरू होती है। जी जिस हिसाब से भी देखा जा रहा है, अगर हम ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड को लेके अभी क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि फाइनल जो एक टारगेट जो रहने वाला है वो टारगेट कितने तक जा सकता है? अगर हम आप बात करें वहां के जो ग्राउंड की जो पहले का रिकॉर्ड अगर हम देखते हुए बात करें, तो मनु जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फाइनल टारगेट कितने तक का रह सकता है? देखिए, चूंकि बड़ा ग्राउंड है तो ये तो दोनों ही टीमें सोच रही होंगी कि जो और ग्राउंड पे 200 हो जाता है, वहां पर अहमदाबाद में वो 180 भी इसी तरीके का है वहां पर। तो ये 180-185 का मैच वो भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। बाकी एवरेज स्कोर यदि आप उठा के देखें तो वो ज्यादा नहीं है ऐसा कि भाई बहुत 220 या 225 का हो, पर चूंकि बड़ा ग्राउंड है तो मैं ये मानता हूं कि 180 रन हेल्पफुल होंगे दोनों ही टीमों के लिए। जी देखने वाली बात है कि क्या बनाते हैं जी। जो तो इंडिया ने तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड 234 भी बनाया है, बट एवरेज आप उठा के देखें तो 180 रन 180-185 रन बनते हैं और वो डिफेंड किए जा सकते हैं। विष्णु जी, जिस हिसाब से अभी मनु जी बता रहे हैं कि 180 से 185 के बीच में टारगेट हो सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही प्रिडिक्शन है भैया की। और ये एक चीज और भी होती है कि जो फाइनल मैच है ना, वो आप कितने फाइनल्स उठा के देख लीजिए कहीं के भी किसी भी इवेंट के, वो फाइनल ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं होते। दोनों ही तरफ ना कोई सी भी बल्लेबाज हो, एक फाइनल का एक दिमाग में रहता है, और कभी फाइनल बहुत हाई स्कोरिंग नहीं हुए किसी भी गेम के। तो मैं भी जब मनु भैया बता रहे थे तो मेरा भी 175-80 जो है ना पार स्कोर होगा। मतलब यहाँ पर जो भी पहले बना लेगा 180, दूसरी टीम के लिए कहाँ मुश्किल होगा इतने बड़े ग्राउंड पर। जी अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस बार का पूरे अगर आईपीएल को हम देखते हुए हैं तो इसमें से अच्छे जो खिलाड़ी हैं, जो श्रेष्ठ प्रदर्शन जो देखने को मिला है, तो उनमें से आप किस किस को देखते हैं जो जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा हो, जो आज काफी हेल्प भी कर सके अपनी टीम को? जी पंजाब के दोनों ओपनर्स प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह। उसके बाद हमारे अपने बैट्समैन में अगर बात करूं तो कप्तान साहब, 3 तो मैं इधर देखता हूं बल्लेबाजी में। अगर गेंदबाजी की बात करूं पंजाब में तो जो हमारा सरदार जी हैं अपने मीडियम पेसर, वो अर्शदीप जी, और स्पिनर युजी चहल। 5 प्लेयर तो मैं ये पंजाब की तरफ देखना चाहूंगा। जी मनु जी, अगर हम बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी का जो श्रेष्ठ प्लेयर की अगर हम बात करें तो उसमें से आपके नज़र में कौन आता है सामने जो अपनी टीम को काफ़ी मेहनत भी कर रहा है अपनी टीम में और काफ़ी अपनी टीम को सपोर्ट भी कर सकता है? और जबकि जो आज फाइनल है, इतना बड़ा फाइनल मुकाबला अगर जब होने जा रहा है, तो इसमें कौन ऐसा हो सकता है, कौन कौन श्रेष्ठ प्लेयर हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा सकते हैं आज? देखिए, आप अभी तक का पूरा आईपीएल उठा के देखें, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 और 2 मैचेस, 1-2 मैच या 2-3 मैचों की बात नहीं कर रहा। टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट हर टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, हर टीम ने। यहाँ पर विराट, साल्ट, रजत पाटीदार तो उधर दोनों प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य, उन्होंने अच्छा किया, ब्रिलियंट किया। तो बट व्हाट अबाउट मिडिल ऑर्डर? मिडिल ऑर्डर में आप देखिए, इधर मयंक के आने से एक अलग स्पार्क आ गया आरसीबी में। उन्होंने ये बहुत अच्छा एक स्टेप उठाया और मयंक ने पिछले दोनों मैचों में वो दिखाया भी है। इधर मयंक और जितेश, और साइमल्टेनियसली आप यदि पंजाब का मिडिल ऑर्डर देखें तो वो आरसीबी से थोड़ा सा आगे है। वहां पर निहेल है, शशांक है और स्टॉइनिस है। इन तीनों ने समय समय पर बड़े अच्छे कंट्रीब्यूशन दिए हैं अपनी टीम के लिए और कंपैरेटिवली ज्यादा कंसिस्टेंट हैं आरसीबी के मिडिल ऑर्डर से। ये एक बस यहां पर एक मैं
एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है पंजाब को जो मैं देना चाहूंगा। यदि उनके पास बॉलिंग यूनिट अच्छी है तो इनके पास डेप्थ बहुत ही अच्छी है। कहीं भी यदि ऊपर से टॉप ऑर्डर हिलता है तो ये मिडिल ऑर्डर इनका संभालने वाली पोजीशन में होता है और बहुत बार संभाला है। 18 मैचों में आप उठा के देखें तो बहुत बार इनके मिडिल ऑर्डर ने इनको संभाला है। वहां पर यदि आरसीबी को देखें तो आरसीबी थोड़ा हिल गई है। वो तो मयंक एड ऑन हुए हैं तब से ये थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। मेरा जो सारा फोकस है वो ये मिडिल ऑर्डर ही देखना है आज कि ये मिडिल ऑर्डर कैसे इस आईपीएल में आज अपनी टीम के लिए रोल प्ले करेगा। जी, अगर हम बात करें रजत पाटीदार की तो वो क्या लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं आरसीबी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो रजत पाटीदार है वो 3 नंबर बैटिंग करते हैं और उनका रोल बिल्कुल इसी तरीके से हो जाता है जैसे श्रेयस अय्यर का है। और फिर आप लीडर हो और आपकी लीडरशिप में पहली बार टीम जो है एक खिताब की तरफ पहुंच रही है। बहुत लंबे समय के बाद एक फाइनल खेलने जा रही है आरसीबी और उसमें एक न्यू कैप्टन के साथ, तो और टीम भी अच्छी फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं रजत के चारों तरफ तो घूमेगा गेम और आप 3 नंबर आ जाते हो सर्कल में। कई बार नहीं कुछ हुआ तो एकदम ही आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है। 3 नंबर का मतलब है कि 1 बॉल गेम है, एक पहली गेंद पे ही आउट हो गया तो आपको ओपन ही करना पड़ रहा है, तो वेरी नेक्स्ट बॉल पे आपकी बैटिंग आ जाती है, तो आपके चारों तरफ गेम को आपको घुमाना पड़ेगा। आप उस समय आप ये कह के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते कि भाई मैं सडनली एकदम ओपन करने पहुंच गया या कुछ। बट रजत पाटीदार का आज के मैच में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मैच में मेरा अपना सोचना यह है कि कोई भी कैप्टन नहीं चाहेगा कि उसके मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आए। एट लीस्ट जो टॉप ऑर्डर है वो 10-12 ओवर तक जाए ताकि मिडिल ऑर्डर थोड़ा रिलैक्स रहे। अब कोई एक टारगेट में अज्यूम नहीं कर रहा हूं कि 10-12 ओवर में इतने रन बनेंगे तो रिलैक्स रहेगा मिडिल ऑर्डर, बट मिडिल ऑर्डर रिलैक्स रहता है जब आप टॉप ऑर्डर थोड़ा सा पार्टनरशिप लंबी कर लेता है। यदि मिडिल ऑर्डर कोई 6-7वें ओवर में जाना पड़ेगा तो वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बिकॉज दे हैव टू बिल्ड द इनिंग एंड दे हैव टू स्कोर एज वेल एज। बिल्कुल, तो वो फिर डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मिडिल ऑर्डर पे इस तरीके का कुछ वो हो, तो ये रजत पाटीदार के भी दिमाग में होगा। जी, भीष्म जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जिस हिसाब से मनु जी बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है रजत पाटीदार जो है वो आरसीबी का फ्यूचर के लिए टर्निंग पॉइंट है कि जिस हिसाब से उनका अभी देखा जा रहा है, और जैसे मनु जी भी बता रहे हैं कि वो काफी एक महत्वपूर्ण उनकी भूमिका भी हो सकती है, तो आपको क्या लग रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ मनु भैया से। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा रजत पाटीदार के लिए। कभी कभी कहते हैं किसी के पैर बड़े शुभ होते हैं, आरसीबी के लिए रजत एक शुभ कदमों के साथ आए हैं, मतलब थे वो अराउंड ही। लेकिन आप देखिए आरसीबी कितनी स्ट्रॉन्ग साइड लेकर चलते आए हैं। शुरू से देखिए कितने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, गेल, डिविलियर्स। एक दौर तो मनु भैया याद करें तो ऐसा था कि मतलब लगता ही नहीं था कि इससे तगड़ी कोई बैटिंग लाइनअप है पूरी टीमों में मिलाकर। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी कभी वो फाइनल नहीं जीत पाई। और अब आप देखें तो बहुत बड़ा प्लेयर तो विराट कोहली है, उसके अलावा कोई अभी ये जो इनके सॉल्ट खेल रहे हैं इनके साथ, ये भी कोई बहुत अभी वो नहीं है, एस्टेब्लिश्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए कि कंपैरिजन पहली टीम से करके देखिए और अब देखिए, तो रजत पाटीदार इस टीम के लिए एक शुभ संकेत लेकर आए हैं। बीच में इंजरी हो गई है उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने उस इंजरी को दरकिनार करते हुए पिछला मैच खेलना पसंद किया। पहले वो इम्पैक्ट सब के रूप में आ रहे थे, लेकिन ये मैच खेले वो, ये भी खेलेंगे।
और वो भी कूल है। देखिए दोनों कप्तानों को अगर आप देखें ना, तो दोनों ही कप्तान बहुत कूल हैं, फोकस्ड हैं, अपना लक्ष्य पे बिल्कुल डटे हुए हैं। अपने प्लेयर्स को देखिए, दोनों टीमों में बड़े बड़े प्लेयर हैं, रजत, विराट कोहली तो खैर, रोहित शर्मा भी, और सारी सब में ही आउटस्पोकन है, अपनी बात को रखते हैं, बोलते हैं। लेकिन इधर देखेंगे आप तो बहुत ही हाइपर एक्टिव हैं आज, पिछले मैच में भी और अभी भी, और रजत पूरा सम्मान देते हैं उनको। तो बिल्कुल रजत जबरदस्त बैट्समैन है भाई, तो उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है और वो अच्छा करेंगे इस मैच में। जी, जिस हिसाब से बात किया जाए अय्यर की, अगर हम बात करते हैं तो अय्यर अभी इस बार क्या उनका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा? क्योंकि फाइनल में जब अगर हम बात करें तो फाइनल में कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रेशर भी आ जाता है, और बाकायदा जब आप एक कैप्टन होते हैं तो कैप्टन के तौर पे भी प्रेशर जो रहता है, तो प्रेशर को किस हिसाब से झेलेंगे या फिर प्रेशर के अंडर में रहकर किस प्रकार से खेलेंगे, ये एक आज महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी। तो इसमें आपको क्या लग रहा है भीष्म जी? जी, मैं श्रेयस की ये कल वाली इनिंग से लेके जी, मैं बहुत आश्वस्त हूं कि श्रेयस अय्यर पे कोई प्रेशर नहीं, वो बहुत रिलैक्स हैं। कल देखिए, जब आप अच्छा करके आते हो ना, तो फिर आपके अंदर अगर जो थोड़ी बहुत भी वरीज हैं आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, किसी चीज को लेकर, वो तो अब है नहीं। दूसरा, मैं उनको सुन रहा था अभी कहीं, आज ही एक इंटरव्यू में सुन रहा था कि उनसे किसी ने पूछा कि आप अपने आप को तैयार कैसे करते, तो उन्होंने कहा कि मैं फोकस करने के लिए अपनी हार्ट बीट सुनता हूं। तो देखिए आप वो फोकस लेवल देखिए, आप कितना जबरदस्त फोकस लेवल है कि व्यक्ति अपनी हार्ट बीट सुन रहा है, उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा। उसका टारगेट देखिएगा आप, उसने कोई 100 का सेलिब्रेशन नहीं किया, उस मैच जीतने का सेलिब्रेशन नहीं किया, बिकॉज उसका टारगेट है ये वाली ट्रॉफी लेना। इतना फोकस्ड है श्रेयस अय्यर इस मैच के लिए, वो अच्छा करेंगे। क्रैकिंग मैच होने वाला है भाई तिवारी जी। जी मनु जी, मैं आपसे भी यही लास्ट एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से अगर हम अय्यर की बात करते हैं तो अय्यर का क्या परफॉर्मेंस रहेगा और किस प्रकार से उनका आज जो अंडर प्रेशर आज जो रहेगा, जिस हिसाब से भी भीष्म जी बताए कि वो काफ़ी इस हिसाब से अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और हार्ट बीट जब सुनने वाली बात अगर वो बता रहे हैं, तो ये जिस हिसाब से उनकी तैयारी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए तिवारी जी, जब हम लोग खेला करते थे तो ये जो सेमीफाइनल मैच है ना जी, ये सबसे टफ होता था, क्योंकि आप ना बहुत नजदीक पहुंच के और बाहर हो जाते थे। तो लास्ट मैच जो था, जो श्रेयस अय्यर जो पंजाब में खेला है, वो सेमीफाइनल मैच था। अभी वहां एक प्लेयर ने इतनी ब्रिलियंट इनिंग खेली है, और उस टीम के अगेंस्ट मुंबई इंडियन का ये रिकॉर्ड है कि जब उसने 200 बना दिए तो वो कभी मैच नहीं हारी, और 204 रन चेज हुए और एक ओवर बचा रहा। वहां पर श्रेयस अय्यर ने जो इनिंग खेली है, आप देखो, मैं भीष्म ने ये बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया कि वो कितने फोकस थे, कि उन्होंने उनके ऐसा लगा उनके सारे जेस्चर से कि जैसे उनको पता लग गया तो मैं जिता दूंगा मैं आराम से। उन्होंने सेलिब्रेट ही नहीं किया उसको, उन्होंने शॉटे मारी, छक्का मारा, एंड ठीक है, इट्स ओके। आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन है, बट जैसे वो कह रहे हो कि ये आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन है, बट दिस इज नॉट माई गोल। माई गोल इज इन फाइनल, आई हैव टू विन द ट्रॉफी। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बारे में हमको ज्यादा एक्सप्रेसिव होने की जरूरत ही नहीं है। इस साल तो वो जितनी भी इनिंग खेले हैं, चाहे वो बॉम्बे के लिए हो, इंडिया ए के लिए हो, आईपीएल में हो, वो खेले ही इस तरीके से हैं। जी, अगर हम बात करें दोनों ही टीमों की, तो दोनों टीमों में से इस बार सबसे बेटर अगर लीडरशिप देखने को मिला तो वो किसकी है, रजत पाटीदार या श्रेयस अय्यर? नहीं, बिल्कुल ये तो फुल क्रेडिट गोज टू श्रेयस अय्यर, बिकॉज श्रेयस अय्यर, देखिए क्या होता है तिवारी जी, एक जब नए प्लेयर्स होते हैं ना, तो उनको बताना कि भाई ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से आप कर सकते हो, और आप कर सकते हो, वाकई कर सकते हो, ऐसे उनको मोटिवेट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी एक बात बताइए, रजत पाटीदार विराट कोहली को थोड़ी कहेंगे कि आपको ऐसे करना है, या स्कॉल्ड को थोड़ी बोलेंगे, या मयंक को थोड़ी बोलेंगे, या जितेश को थोड़ी बोलेंगे, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस। बिल्कुल। बट रियांश आर्य को, प्रभ सिमरन में फेथ रखना, उनकी कमर पे हाथ रखना, बोले जस्ट गो एंड एंजॉय, आई एम विद यू। श्रेयस अय्यर का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई दिया है, या यू जस्ट गो ओवर देयर, आई एम विद यू, जस्ट एंजॉय योर गेम, और उन्होंने खेला भी,
प्रियांश आर्य का पहला डेब्यू ईयर जिसमें उन्होंने 100 कर दिया। बिल्कुल। तो लीडरशिप तो दिख रही है साफ कि किसकी ज्यादा बेटर रही है। चलिए, अब देखने वाली बात तो यही रहेगी कि आज का ये जो फाइनल मैच है, आज के फाइनल मैच में विजेता कौन होता है। और इस बार दोनों में से जो भी टीम विजेता हो, लेकिन इस बार एक रोमांचक मैच होने वाला है, ये तो फाइनल है। और ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर अभी देखा जा रहा है, जिस प्रकार से भीड़ थी, जैसा जो माहौल है वहां पे, अब फिलहाल अब थोड़ी देर के बाद मैच जो शुरू होगी और उसके बाद जो आज रात को जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद क्या होता है वो देखने जैसा रहेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए जी तिवारी जी 2 बजे 25,000 रुपए टिकट था फ्लाइट का, दिल्ली टू अहमदाबाद। जी, आप सोचिए क्रेज किस लेवल पर है इस मैच का। बिल्कुल, क्रेज तो होना ही था। मनु जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए ये चर्चा में। प्रोफेसर भीष्म जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ये चर्चा करने के लिए। હવે ફાઇનલ જોવાનું એ રહેશે કે આજે જે મેચ થવાની છે, જે આજે ફાઇનલ મેચ છે જેમાં એક નવો ટીમ વિજેતા બનશે, તેને લઈને અત્યારે હાલમાં ત્યાં બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે અને ફેન્સ જે છે તે ખૂબ જ ઉત્સુક અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે। અને આજે આરસીબી જીતે કે પંજાબ કિંગ્સ જીતે, પણ આજે આજનો જે મેચ છે તે ખૂબ જ રોમાંચક થવાનું છે। અત્યારે હાલ આપણે રોકાશું એક નાનો બ્રેક માટે, ત્યાર સુધી જોતા રહેજો ઇન્ડિયા